dear students. I hope you all are safe at home and taking care of your own selves. Today we will start with the very first chapter of English 1, The Whispering Palms of class 3, and this is the book in which you have your first chapter, The Whispering Palm. Now children, have you ever thought or seen any water bodies? Water body क्या होता है? Water body is a place where like beaches, like your river, like your stream, these are all water bodies where you see ample of water. Have you ever thought of drinking water from those water bodies? We don't actually drink water from the water bodies, but we purify it and then we drink water. Likewise, there is a child in this story and her name is Mori, M-O-R-I. She is a very talented girl. जैसे आप सब इंटेलिजेंट हैं, हमेशा नेचर के बारे में सोचते हैं, वैसे ही there is a girl named Mori and she decides that how we can save nature. So वो क्या करती है कि अपने आसपास सभी को एजुकेट करने का कोशिश करती हैं कि हम नेचर को कैसे मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, बजाय उसको एक्सप्लॉइट करने के। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका ऑप्टिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ऑप्टिमम इज द बेस्ट यूज़, द मैक्सिमम यूज़ ऑफ इट, बट विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। सो नाउ लेट अस रीड द स्टोरी अबाउट मोरी, how she brings about a change. Change का एक और वर्ड क्या हो सकता है? Transformation. So how she brings about a change in the people. Let us see. The Whispering Palms. Mori was a little girl with brown eyes. Who was Mori? Mori was a little girl. जैसे आप सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, little children हैं. Likewise, Mori was also a little girl with brown eyes. Mori को कैसे define किया है कि Mori की eyes कैसी हैं? Brown eyes. She lived with her parents in a beautiful coconut grove. वो कहाँ रहती थी? She lived with her parents. जैसे आप सब अपने पेरेंट्स के साथ में अपने हाउस में रहते हैं, She also lived in a beautiful coconut grove. Grove क्या होता है? जहाँ बहुत सारी ट्रीज होती हैं, घने ट्रीज होते हैं, that is called as grove. और वो grove किन ट्रीज का था? कोकोनट का. So we have Mori living with her parents in a beautiful coconut grove next to a small blue lake, and her house was next to a small blue lake. Can you see this? This is the blue lake that she is talking about. और इस टाइप के palm trees, coconut groves थे वहाँ पे जिनके पास वो रहती थी. And this is Mori and this is her father and mother. Every morning, her morning, she balanced a big empty basket on her head as she walked down to the lake. Now, who is this she? She कौन है इसमें? Mori. So she balanced a big empty basket on her head as she walked down to the lake. जब वो लेक पे जाती थी, she used to take a basket like this. जैसे उसने अपने सर पे बैलेंस कर रखा है, so she used to take it to the lake. Her mother followed with the laundry and her father brought the big fishing net. What did the mother carry? Mother लॉन्ड्री के कपड़े लेकर के आते थे. What is laundry? जो वॉशिंग क्लोथ्स होते हैं, जिनको वॉश करना होता है. So she used to carry the laundry clothes and the father, see, father के शोल्डर पे क्या है? नेट है, फिशिंग नेट, जिससे वो फिश को कैच करते थे. Her mother, who is this her? Her Mori है. Her mother washed the clothes on a stone next to the lake. वहाँ पे एक स्टोन है जिस पे उनकी मम्मी क्लोथ्स वॉश करते हैं. एंड नेक्स्ट टू द लेक while her father went fishing, और उनके फादर फिशिंग जाते थे. He dragged the net ashore. ड्रैग करना मतलब होता है
to pull something with force, with energy. He dragged the net ashore and they collected the fish in a big basket. And now they used to collect the fish in a big basket. Children, फिश अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है. हम बहुत सारी फिश होती हैं तो उन्हें फिशेस नहीं बोलते हैं, बट वी कॉल इट एज फिश. सो फिश क्या है? इट इज़ अ प्लूरल वर्ड, सिंगुलर नहीं है ये. इट इज़ अ प्लूरल वर्ड. समटाइम्स, व्हाट इज समटाइम्स? कभी कभी. समटाइम्स अ टर्टल गॉट स्टक इन द नेट बट मोरी ऑलवेज हरीड टू द रेस्क्यू. कभी कभी ऐसे होता था कि जब फादर फिश कैच करने जाते थे तो उसमें क्या अटक जाता था? इट गॉट स्टक. हु गॉट स्टक? टर्टल, कछुआ. सो टर्टल भी उसमें स्टक हो जाता था. बट मोरी ऑलवेज हरीड टू द रेस्क्यू. मोरी क्या करती? मोरी दौड़ कर उसे बचा लेती, सेव करती. रेस्क्यू मीन्स टू सेव. देखो, जैसे आई हैव रिटन द वर्ड मीनिंग, यू कैन अंडरलाइन द वर्ड एंड राइट द वर्ड मीनिंग. सो हु यूज टू सेव द टर्टल? टर्टल को किसने बचाया? इट वॉज मोरी हु यूज टू सेव. सो इससे मोरी का क्या नेचर पता चलता है? दैट मोरी वॉज सेंसिटिव टूवर्ड्स द नेचर. मोरी हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी, वेदर इट वॉज नेचर, एनिमल्स और वेदर ट्रीज. नाउ चिल्ड्रन, टर्न योर पेज टू पेज नंबर 5. One sunny morning, while, what is sunny morning? जब धूप बहुत तेज थी. One sunny morning, while fishing with her father, Mori said. जब उसके फादर के साथ वो फिशिंग कर रही थी तो मौरी ने क्या कहा फादर से? If we catch so many fish, one day there won't be any left. So मौरी ने कहा कि पापा, अगर हम इतनी सारी फिश रोज कैच करेंगे, there will not be any fish left. WONT क्या होता है? Will not. So this is won't. हम इसे कैसे लिखते हैं? WON''T. Won't be any left. And ये देखो, इसको inverted comma में दिया है. That means that this is a dialogue told by Mori. Her mother laughed and sent her off to the school. What did the mother say? Mother सिर्फ हंस के उसे कहा, you can go to the school. Now, in the shade of the trees, Mori's mother fell into an uneasy sleep. Now, in the shade of the trees, जो पेड़ की छाया थी उसके नीचे, like this, what you can see, ये जो ट्री की शेड्स होती हैं उसमें Mori's mother went to sleep. She dreamt of a lake with no fish. उसने ड्रीम में क्या देखा? कि एक ऐसा तालाब है जिसमें कोई फिश बची ही नहीं है. While the wind in the palm leaves whispered. और जो हवा है इन पाम ट्रीज के बीच में, जो ये कोकोनट ग्रोव्स हैं इनके बीच में, जो जब हवा चल रही थी, विंड, द लीव्स विस्पर्ड. विस्पर्ड मीन्स स्पीक सॉफ्टली. विस्परिंग का मतलब होता है धीरे से बातें करना. स्पीक सॉफ्टली. सो लीव्स क्या बातें कर रही थी? लेट अस सी. The waters and the land have always taken care of your family, but you have to take care of them in return. Leaves क्या बातें कर रही थी जो उसकी मम्मी ने सपने में सुना? Leaves कह रही थी कि the waters and the land, ये पानी और ज़मीन ने आपका हमेशा ध्यान रखा है, of your family, but लेकिन you have to take care of them in return. आपको भी उनका ध्यान रखना चाहिए. हम हमेशा अच्छी हवा चाहिए तो हम ट्रीज़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं. वी सिट अंडर द ट्रीज़. जब हमारी गाड़ियाँ धूप में खड़ी होती हैं तो उनकी सीट गर्म हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं? कहीं पे जहाँ शेड है वहाँ जा कर के हम अपनी व्हीकल्स पार्क करते हैं. सो मौरीज मदर ड्रेम्ड. उन्होंने सपना देखा जिसमें पानी और ज़मीन उनसे कह रहे थे, लीव्स कह रही थी कि पानी और ज़मीन का जैसे आपको वो सब कुछ देती हैं तो यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ देम इन रिटर्न. बदले में आपको भी उनका ध्यान रखना चाहिए. जैसे आप सब ध्यान रखते हैं, हमने ट्री प्लांटिंग किया था ना, उसी तरह से आपको अपने घर पे भी, आसपास के एटमॉस्फेयर में भी एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर हो गया, इन सब का ध्यान रखना चाहिए.
शी अवोक मीन्स वो नींद से जग गई, विथ टीयर्स इन हर आईज, वो नींद से जगी तो उनकी आंखों में क्या था, टीयर्स। फॉर का मतलब होता है बिकॉज, यहाँ पे फॉर मीन्स बिकॉज। शी डिड नॉट नो हाउ टू ब्रिंग मौरी अप विदाउट सेलिंग इनफ फिश, क्योंकि उन्हें नहीं पता चल रहा था कि अब वो मौरी को बड़ा कैसे करेंगी। अगर वो फिश नहीं बेचेंगी, सेल नहीं करेंगी, देन हाउ विल मौरी बी एजुकेटेड, मौरी को कैसे पढ़ाएंगे, उसको कैसे पैसे कमाएंगे वो कि मौरी को पढ़ा सकें। सो अब उनकी मम्मी टेंशन में आ गए। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर में, शी सैट वीविंग कोकोनट मैट्स, वो पूरी दोपहर कोकोनट के मैट्स बना रहे थे। जो कोकोनट के ट्री के जो पाम लीव्स होते हैं उनसे वो मैट बना रहे थे। मैट क्या होते हैं, चटाई जिसे हम कहते हैं, बैठने के लिए जो काम आती है उसे हम कहते हैं मैट्स। एंड थिंकिंग अबाउट हर ड्रीम, और वो अपनी ड्रीम के बारे में सोच रही थी। दैट नाइट मीन्स उस रात, मौरी हर्ड हर पेरेंट्स विस्परिंग मीन्स स्पीकिंग सॉफ्टली, आराम से धीरे से बात करना। जैसे आप सोते हैं, अगर बड़े कोई बात कर रहे हैं तो आपकी नींद ना डिस्टर्ब हो, इसलिए हम धीरे धीरे बात करते हैं। मौरी हर्ड हर पेरेंट्स विस्परिंग एंड द ऑयल लैम्प बर्न्ड डीप इनटू द नाइट, और जो पुराने गांव में आपने देखा होगा कि वो लाइट कैसे जलाते थे, वो एक बॉटल होती थी जिसमें वो दिया जैसे लैम्प, लालटेन हम जिसे कहते हैं, वो जलाते थे। सो अचानक से ऑयल लैम्प को उनके पेरेंट्स ने जलाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग हर फादर गेव हर अ स्मॉलर बास्केट, फिर अगले दिन क्या हुआ, क्योंकि उनकी मम्मी ने अपने ड्रीम के बारे में फादर से कहा। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग फादर गेव अ स्मॉल बास्केट टू मौरी। हाउ कैन वी कैरी ऑल द फिश इन दिस लिटिल बास्केट, आस्क्ड मौरी। तब मौरी ने क्या पूछा अपने फादर से कि हम इतनी सी छोटी बास्केट में फिश कैसे लाएंगे। हाउ कैन वी कैरी ऑल द फिश इन दिस लिटिल बास्केट। सी हाउ सेंसिटिव मौरी इज, मौरी कितना इंक्यूजिटिव है। इंक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी करना, मीन्स शी इज आस्किंग क्वेश्चंस। आप भी जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो आप क्लास में पूछते हैं ना, मैम ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कब होगा, ये ऐसा क्यों हुआ। तो वैसे ही आपके जैसे ही मौरी भी बहुत इंटेलिजेंट थी, तो उसे जानना था कि व्हाट इज द रीजन व्हाई फादर इज गिविंग हर अ स्मॉल बास्केट। We will take only as many fish as can fit into this basket, he replied. He कौन है, मौरी's father. So मौरी के फादर ने क्या कहा, हम उतनी ही फिश लेंगे जितनी इस बास्केट में फिट हो सके। मौरी वॉज पजल मीन्स कन्फ्यूज्ड, मौरी क्या हो गई, कन्फ्यूज हो गई। क्यों? Coming back from school, she was thrilled to find her mother making soap and oil from the coconuts. जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई। थ्रिल्ड होना मीन्स टू गेट एक्साइटेड, टू गेट वेरी हैप्पी, टू सी हर मदर मेकिंग सोप एंड ऑयल फ्रॉम द कोकोनट्स। हर मदर वॉज मेकिंग सोप, उसकी मम्मी क्या बना रही थी, सोप बना रही थी और ऑयल बना रही थी फ्रॉम द कोकोनट्स। मौरी स्विफ्टली क्लाइम्ड अप अ ट्री टू गेट मोर कोकोनट्स। मौरी ने क्या किया, स्विफ्टली मीन्स क्विकली, बहुत जल्दी से। क्लाइम्ड अप अ ट्री, क्लाइम करना मीन्स ऊपर चढ़ना। क्लाइम्ड अप अ ट्री टू गेट मोर कोकोनट्स, वो और कोकोनट लेने गई ताकि मम्मी और ज़्यादा सोप और ऑयल बना सके। बट हर मदर कॉशन मीन्स उसे वार्निंग दिया, दैट डोंट प्लक देम, वी मस्ट ओनली यूज व्हाट द ट्रीज गिव अस। हमें उसे नहीं तोड़ना है, हम उतना ही यूज़ करेंगे जितना ट्री अपने आप हमें देगा। मीन्स जो कोकोनट्स ट्री पे से गिर जाएंगे पकने के बाद में, मैच्योर होने के बाद में, वो ही हम कोकोनट यूज़ करेंगे, बट तोड़ेंगे नहीं। वी विल नॉट प्लक देम। हर फादर एडेड, वी हैव टेकन ओनली फॉलन कोकोनट्स फॉर दीज थिंग्स, लुक वी हैव इवन मेड दिस सोप विद अ जैस्मिन फ्लावर इनसाइड। उनके फादर ने बहुत मैच्योरिटी के साथ में मौरी को समझाया कि हमने सिर्फ जो कोकोनट्स गिर गए थे वही कोकोनट से ये चीज़ें बनाई हैं, और देखो हमने इस सोप के अंदर जैस्मिन फ्लावर भी डाला है।
From that day the family made brooms. Broom क्या होता है children? सुबह सुबह मम्मी रूम क्लीन करती है, किससे करती है? झाड़ू से. So that is called in English broom. From that day the family made brooms from the palm leaves and wove mats. और उन्होंने चटाइयाँ भी बनाई and wove mats from coconut fiber. They took soap, oil and only a small amount of fish to the market. और वो मार्केट में सेल करने के लिए बहुत कम क्वांटिटी में सोप, ऑयल और बाकी चीज़ें ले गए, फिश. When Mori grew older, जब मोरी बड़ी हो गई, she loved to carve tiny turtles out of coconut shells and always wore one around her neck. जब मोरी बड़ी हो गई तो what did she do? She learned to carve. She used to make tiny turtles. वो छोटे छोटे कछुए turtles शेप में कोकोनट शेल से, जो कोकोनट का कवर होता है उससे she used to make and wore it around her neck. She used to wear it in her neck. Now this story children teaches us that how we should be sensitive towards our nature. हमें नेचर को अननेसेसरी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बट हमें नेचर को उतना ही यूज़ करना चाहिए, उसी तरह से यूज़ करना चाहिए जिस तरह से नेचर सेव हो सके, जिस तरह से हम रिसोर्सेज को सेव कर सकें बजाय उन्हें वेस्ट करने के. Thank you children, and you have to write these word meanings which you have already written in your copies, and I hope that we have also done the question answers which we had already sent you on WhatsApp. Thank you children. Read this chapter 2 times by putting finger. जैसे मैंने finger रख के read किया है उसी तरह से you also have to read the chapter. Thank you children.